Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, hope you all are fit and fine. I will be teaching you Science of Standard 7. Today in amazing class, we will be dealing with nutrition in plants. So let's begin. All living organisms require energy to perform daily activities. From where do we get energy? We get energy from food. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से. Food items is made up of many ingredients that we get either from plants or animals. Each ingredient is in turn made up of number of components. These components are called nutrients. The 5 nutrients in our food are carbohydrate, protein, vitamins, fats, and minerals. These nutrients help living organisms to build their bodies, to grow, to repair the damaged parts of the body, and to provide energy to carry out life processes. जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं. 5 टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, ग्रो करने को हेल्प करते हैं, डैमेज बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, और दूसरी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं. न्यूट्रिशन, process of intake of nutrients from which organisms derive energy to work. न्यूट्रिशन एक तरीका है जिस ऑर्गेनिजम्स कैसे फूड ले रहे हैं और बॉडी में कैसे यूटिलाइज हो रहा है. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन means method of obtaining food by organisms. There are 2 methods. First is autotrophic and second is heterotrophic nutrition. Organisms अपना फूड ऑब्टेन करने के 2 तरीके होते हैं. फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड है हेटरोट्रॉपिक. Autotrophic nutrition. Word auto means self and tropy means nutrition. So autotrophic means self nutrition. In this type of nutrition, organism synthesizes their food like carbohydrate from water, carbon dioxide with the help of chlorophyll in presence of sunlight. This process is known as photosynthesis. Autotrophic nutrition में plants खुद अपना खाना प्रिपेयर करते हैं with help of water, carbon dioxide, sunlight in presence of chlorophyll. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं photosynthesis. Examples of autotrophic nutrition are Euglena, Volvox, green plants. There are 4 types of heterotrophic plants. Number 1, parasitic plants. Number 2, saprophytic plants. Number 3, insectivorous plants. And number 4, symbiotic plants. Parasitic plants. A parasitic plant derives its nutrition from another living plant. Most parasitic plants have modified roots called hosteria, which is a projection that enables the parasitic plant to extract water and nutrients from the host plant. Parasitic plant अपना फूड दूसरे प्लांट से डिराइव करते हैं
और उनके मॉडिफाइड रूट्स होते हैं जिनको हम होस्टेरिया बोलते हैं, और ये रूट्स होस्ट प्लांट से वाटर और न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट लेते हैं। Dodder or Coscuta is fairly well-known group of parasitic plants found in India that form leafless yellow veins over their host. कुछ प्लांट्स दूसरे प्लांट्स पर निर्भर करते हैं जिसे होस्ट प्लांट कहते हैं, जैसे कॉस्क्यूटा, इसको डोडर प्लांट भी कहते हैं। ये बिना लीव्स का घुमावदार पैरासाइटिक प्लांट है। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। यह अपना खाना फोटोसिंथेसिस से नहीं बना पाता, बल्कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर पलता है, उससे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, जिससे होस्ट प्लांट कमज़ोर हो जाता है, पर वो उसको मरने भी नहीं देता। जो रूट्स होते हैं, मॉडिफाइड रूट्स, उसको हम होस्टेरिया बोलते हैं और सिंगुलर फॉर्म में होस्टेरियम बोलते हैं। ये रूट्स दूसरे होस्ट प्लांट में घुस जाते हैं और पतली डोरी जैसे होते हैं। ये इसमें फूल भी आते हैं जो येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं। डॉडर प्लांट 5 to 10 डेज़ के अंदर जर्मिनेट हो जाता है, अगर उसको होस्ट प्लांट मिल जाए तो। अगर होस्ट प्लांट नहीं मिलता है तो मर जाता है, और जैसे आगे आगे बढ़ता जाता है उसके जो ओरिजिनल रूट्स हैं वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और वह आगे आगे बढ़ता जाता है और होस्ट प्लांट के ऊपर बढ़ता जाता है। ड्राफ मिसल्टो इज़ अनदर पैरासिटिक प्लांट which Hosteria roots। ये एक अनदर एग्जाम्पल है पैरासिटिक प्लांट का, ड्राफ मिसलेटो। इसके भी मॉडिफाइड रूट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं होस्टेरिया। ये भी होस्ट प्लांट के टिश्यू में घुस जाता है और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करता है जिंदा रहने के लिए। सिम्बायोटिक प्लांट्स, इन सिम्बायोसिस two organisms share a mutually beneficial relationship। सिम्बायोटिक प्लांट्स जिसमें अलग अलग दो प्लांट्स एक दूसरे को फूड देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं सरवाइव करने के लिए। इस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं। लाइकन इज एन एग्जाम्पल ऑफ symbiotic plant made of two different organisms called composite organisms, a fungus and alga, where the alga provides food to the lichen and while fungi gives structure. Fungi also provides water and minerals to the alga, while alga through the process of photosynthesis make food. Lichen बेस्ट एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक प्लांट जिसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एल्गा एंड फंगाई मिलकर बनते हैं, जिसको हम कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। यहाँ पे जो फंगाई है वो वाटर और मिनरल्स एल्गी को देता है, और एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करता है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों में, दोनों बेनिफिशियल हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं सरवाइव करने में। Saprophytic plants. Saprophytes are plants or organisms that have special digestive juices that work on dead decaying matter. They convert this matter into a solution and absorb it into their system for nutrition. यह विधि जिसमें प्लांट्स सड़े गले कार्बनिक सब्सटेंस से अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है ईस्ट एंड बैक्टीरिया एंड फंगाई। Mushrooms or toadstools growing along the roadside, although they cannot be classified as plants, they are generally considered to be fungi.
मशरूम्स ना ही पौधे हैं ना ही जानवर, और इनकी 10,000 स्पीशीज होती है जो बरसात के टाइम पे उगते हैं। डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, डिफरेंट शेप्स और कलर्स में पाए जाते हैं। ये गले सड़े चीज़ों के ऊपर उगते हैं और कुछ ईडेबल्स होते हैं, कुछ पॉइजनस होते हैं, और ये इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे प्रोटीन, फुल ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर होता है। Insectivorous plants. These are the plants that consume small insects to provide nutrition to their body. These are regarded as insectivorous plants. ये plants small insects खाते हैं nutrition लेने के लिए। जो small insects को खाते हैं ऐसे plants को insectivorous plants कहते हैं। Pitcher plant is an example of an insectivorous plant. Pitcher plant grows in nitrogen deficient soil, derive their nitrogen from insects. Leaf blade is modified into sac-like structure known as pitcher. Leaf apex forms the lid of a pitcher, which is lined by nectar secreting glands. Internal lining of the pitcher has digestive glands which secrete enzymes to digest protein of the trapped insect. Insects are attracted by colored lid and nectar. Neck of pitcher bear bristles pointing towards inward and downward. Once the insect is trapped and killed, it is digested, and end products of digestion, mainly amino acid, and absorbed by pitcher walls. पिक्चर प्लांट जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है। पिक्चर प्लांट वहाँ पे ग्रो होता है जहाँ पे सॉइल में नाइट्रोजन बहुत कम होता है, तो इंसेक्ट्स को खा के वो अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। जो लीफ ब्लेड है वो मॉडिफाई होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम पिक्चर बोलते हैं, और लीफ एपेक्स उसका लिड बन जाता है। और पिक्चर के अंदर लाइनिंग्स, इंटरनल लाइनिंग्स होती हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करती हैं। इंसेक्ट्स जो हैं वो उसके कलरफुल लिड की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, और नेक पे बैठते ही पिक्चर के अंदर हेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्लिपरी होते हैं, तो इंसेक्ट बैठता है वैसे स्लिप होके अंदर पहुंच जाता है पिक्चर के, और उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से डाइजेस्ट होके और एमिनो एसिड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं पिक्चर प्लांट्स से के द्वारा। इस तरह से जो पिक्चर प्लांट है वो अपना न्यूट्रिएंट्स, जो नाइट्रोजन की कमी है, उसको पूरा कर लेता है। The Venus flytrap is flowering plant best known for its carnivorous eating habits. The trap is made up of two hinged lobes at the end of each leaf. On the inner surfaces of the lobes are hair-like projections called trichomes that cause the lobes to snap shut when prey come in contact with them. वीनस फ्लाई ट्रैप ये कार्निवोरस प्लांट है जो इंसेक्ट्स को खाता है। ये इंसान को भी खा सकता है, पर इसकी साइज इतनी छोटी है इसीलिए इंसान को नहीं खा सकता है। ये अमेरिका में साउथ कैरोलिना में पाए जाते हैं। पत्ते के दोनों भागों की सतह पर संवेदनशील बाल जैसे रेशे होते हैं, जिसे हम हेयर लाइक प्रोजेक्शंस बोलते हैं। बारीक बाल होते हैं, और इसमें से किसी को कोई छू लेता है तो पत्तों को दोनों भाग तुरंत बंद हो जाते हैं और इंसेक्ट को अपने भीतर कैद कर लेते हैं। इंसेक्ट को पूरा पचाने के बाद में
दोनों भाग पुनः खुल जाते हैं और अन्य शिकार की प्रतीक्षा करने लगते हैं। Now we will try to understand difference between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. In autotrophic nutrition, food is prepared by the organism itself, whereas in heterotrophic, food is obtained from the other organisms. Autotrophic में खुद organisms अपना food prepare करते हैं, heterotrophic में वो दूसरों के ऊपर dependent रहते हैं। ऑटोट्रॉपिक में रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है और हेटरोट्रॉपिक में रॉ मटेरियल्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऑटोट्रॉपिक में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, हेटरोट्रॉपिक में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्लोरोफिल इज प्रेजेंट फॉर मेकिंग फूड, whereas in autotrophic chlorophyll is absent. Autotrophic are known as producers and heterotrophic are known as consumers. Autotrophic examples are plants, blue-green algae and cyanobacteria, whereas heterotrophic examples are animals. Autotrophic nutrition में chlorophyll present होता है जिससे फूड प्रिपेयर होता है, हेटरोट्रॉपिक में एब्सेंट होता है। ऑटोट्रॉपिक को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स और हेटरोट्रॉपिक को हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल ऑटोट्रॉपिक के प्लांट्स हैं ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया, एंड हेटरोट्रॉपिक में सारे एनिमल्स।